Good afternoon, everyone. Today we are going to learn about the simplifications techniques using KMap. अभी तक आपको मैंने ट्रुथ टेबल और एक्सप्रेशंस के द्वारा KMap कैसे फिल करना है ये बताया, राइट? एक छोटा माइनर स्लाइड आपको पीछे लेके जा रहा हूं. You can watch. Last time I told you advantages and disadvantages, as well as I given you idea about how to plot the given boolean expressions on KMap, right? एक्सप्रेशन दिया था. एक्सप्रेशन से आपने उसका हर एक का एलिमेंट फाइंड आउट किया, ट्रुथ टेबल ड्रा आउट किया. जैसे ही आपको ये पता चला कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, उसी के हिसाब से आपने ट्रुथ टेबल के द्वारा या एक्सप्रेशंस के द्वारा के मैप फाइंड किया. 4 वेरिएबल के मैप है यहाँ. 4 वेरिएबल के मैप की वैल्यूज पुट आउट की. अभी तक आपने यहां तक सुना और यहां तक आपको पता है, राइट? नाउ आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट वन पॉइंट, दैट इज सिंप्लीफिकेशंस यूजिंग के मैप. Now I am just reading the sentence, so I tell you one by one. After plotting the logic function or truth table on a K-map, we use the grouping technique to simplify the logical expressions. अभी तक मैंने जितने सारे प्रॉब्लम्स दिए आपको, इस प्रॉब्लम्स में मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया कि लॉजिक फंक्शंस कैसे आप यहाँ पर के मैप में या ट्रुथ टेबल आप कैसे के मैप में पुट आउट करोगे. नाउ आई एम गिविंग यू आइडिया अबाउट हाउ टू ग्रुप टेक्निक्स. ओके, हाउ टू ग्रुपिंग द टेक्निक. ओके, ग्रुपिंग टेक्निक to simplify the logical expressions means if you want to find SOP or POS form, that is min terms or max terms, so how you will get it, right? So for that I am going to tell you here the process how you can do that. So to group means to combine the term in the adjacent cell. Now you are knowing 2 by 2 K map is there. Okay, means 2 variable K map is there, then 3 variable K map, 4 variable K map. I given you idea about the 2 variable, 3 variable, 4 variable K map. Okay, now we are going to combine the terms in the adjacent cell. So how you will get? Okay, so what you will get, how you will get, and what you will get. Okay, see, if the adjacents, okay, if the adjacents ones are group, okay, if the adjacents ones are group, then the result of simplification is in sum of product form, right? Getting my point? Okay, means if you are going to group ones, okay, the adjacent, then you will find the sum of product form. Okay, if you are going to group zeros, then result of simplification is in product of sum terms. Okay, now first of all I am giving you idea about the ones. Okay, then we will go for zeros. Okay, but I think one, if you understand one thing, you can do another thing also. Okay, so first of all I am giving you sum of product form, how you will do that. Okay, so that's why here various types of combinations for simplifications are given, like pair, chord and octet. Okay, सो हर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप के नीचे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था कि भाई आप वहां पर M1, M2, M2, M3 का कॉम्बिनेशन कर सकते हो. तो वो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, वो सिंप्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर रहेगी. इनकेस अगर आप फाइंड कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, डोंट बॉदर अबाउट इट. पिछले वीडियो अगर आपने ऑलरेडी देखे हैं, ध्यान देके, सो दैट्स व्हाई नो नीड टू गो for watching again that video. You can find all the things here also. Okay, I am repeating these things. Okay, only just see one by one. Okay, what I am telling you. See, here first of all, remember there are various types of combinations for simplifications. First one is pair, chord and octet, right?
So we will see one by one. I'm giving you idea about the 2 variable, 3 variable and 4 variable also. So just see now here in front of you, you can find the pair. Okay, a pair is a group of two adjacent ones in a K-map. A pair leads to eliminations of one variable in SOP form, right? So अभी तक मैंने आपको के मैप कैसे ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा, ये तो बता दिए, राइट? अभी आपके सामने के मैप ही ड्रॉ है. ओके, उसमें आपको यहाँ पर कितने वेरिएबल का के मैप है? ओके, बता सकते हो? है किसी का आंसर? ओके, I hope I am telling you. Okay, it is a 3 variable K map because there are 3 variable like A, B and C. Okay, जो slanted line है ना, उसके नीचे और above देख लेने का. जो slanted line है इधर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपका 8 सेल्स है और यहाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको एक स्लैंटेड लाइन दिखाई देगी, वहां पर ए बॉटम साइड में लिखा है, बीसी अप साइड में लिखा है. तो टोटल कितने वेरिएबल है यहाँ पर? 3. अभी ये ट्रूथ टेबल, ओके, अभी यहाँ पर ये के मैप जो है, ये के मैप में आपको यहाँ पर 2 ही जगह वंस दिखाई देंगे. ओके, बाकी अदर्स आपको यहाँ पर 0 है. अभी मैंने वहां आपको वंस के रिलेशंस, वंस की एक्सप्रेशंस भी लिख के रखी है. बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपको ऑलरेडी पता है कि भाई के मैप कैसे यहाँ पर ड्रॉ करना है. आप ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो से यह बात समझ चुके हो. अभी ये 3rd वीडियो है कि मैं यहाँ पर आखिरी चीज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. तो यहाँ आपके सामने ट्रूथ टेबल है. ट्रूथ टेबल में 2 वंस है और अदर्स आर 0. नाउ मैंने यहाँ पर 2 वंस को, जो 2 वंस है, उनको यहाँ पर मैंने एक छोटा स्क्वायर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया. ओके, और वहां उसको पहले वंस के लिए मैंने लिखा है ए बार बी बार सी. क्वेश्चन इज हाउ यू विल गेट इट. ओके, हाउ यू गॉट दैट ए बार बी बार सी. जो रो है, रो का वैल्यू है वहां पर ए बार, और जो कॉलम है 1 में, जो कॉलम है 1 का, उसका वैल्यू है आपको बी बार सी, राइट? सो दैट्स व्हाई यू कंबाइन इट, यू विल गेट ए बार बी बार एंड सी, राइट? सेकंड वन है, सेकंड वन इज अगेन टेक अ रो वैल्यू ए बार एंड कॉलम वैल्यू बी सी. सो आई राइट इट ए बार बी सी, राइट? नाउ I need to write that expression, so I write in bottom y is equal to a bar b bar c plus a bar b c. Getting everyone? कोई डाउट भी यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने में? यहाँ पर इस तरह वंस, एडजेसेंट वंस को मैंने यहाँ पर स्क्वायर में डाल दिया और उसको यहाँ पर उसकी एक्सप्रेशंस लिख ली. This is the technology, this is the technique of pair. Okay, so in a pair, okay, यहाँ पर हमने 2 वंस को, यहाँ पर 2 adjacent वंस को हमने यहाँ पर ग्रुप किया है, राइट? इस तरह मैंने उसका एक्सप्रेशन लिखा. नाउ आई एम एडॉप्टिंग, आई एम यूजिंग rule, Boolean algebra rule. So I know here b bar is directly proportional to 1. So that's why just keeping that rule in mind, okay, I write here y is equal to a bar c in bracket b bar plus b, right? So I have given it b bar plus b is equal to 1. Okay, so if it is 1, write final answer y is equal to a bar c. Okay, so that's why a pair eliminates one variable. Okay, so that's why this will be your last answer, though you have got, though any expressions is given in the beginning, but here it is a reduced form. Okay, so that's why here it is a fully simplified form is getting in your answers, right? So this is the simplest and fastest way. Okay, you don't need to remember the all Boolean algebra rules, only a few rules you should know. Okay, with the help of that rule you can easily solve that K map, as well as you will find the final expressions. Okay, so ये एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पर. आई होप एवरीवन हैव रिटन इन योर रफ नोटबुक. ओके, अगर आपके पास रफ पेज भी होगा, ट्राई करो इसको लिखने के लिए, क्योंकि कैसा है, वंस यू विल राइट, यू विल गेट एन आइडिया.
ओके और आइडिया आएगी तो आप वहां पर उसको यूज कर सकोगे, राइट? सो नाउ अगेन आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट वन एग्जांपल. नाउ इन केस यहाँ पर अगर के मैप में कुछ वैल्यू अगर इस तरह है, ओके एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूं आपको. यहाँ पर हॉरिजेंटल में वंस से अभी वर्टिकल में वंस आ गया. तो यहाँ अगर वर्टिकल में वंस है तो यहाँ पर पहला वन है ए बार के लिए और दूसरा वन है ए के लिए, ओके और वहां कॉलम वैल्यू है उसकी बीसी, राइट? तो पहले वंस के लिए वैल्यू लिखा है ए बार बीसी और सेकंड वन के लिए वैल्यू लिखा है ए बी सी, राइट? गेटिंग एवरीवन? ओके अगर इस तरह वैल्यू है तो मैंने एक्सप्रेशन लिख डाला भाई y इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी सी. ओके नाउ अगेन हियर वेरी सिंपल रूल आई अडॉप्टेड. ए बार प्लस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, so that's why that are get eliminated. Only final value y is equal to bc, that is final answer. देखो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, समझा कि नहीं, देख लो. दिस इज अ वे यू अडॉप्ट. ओके आपको यहाँ यही वे अडॉप्ट करना है आगे आगे चल के. जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो दिस विल बी द रूल. ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज अबाउट द पेयर. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हियर थर्ड वन. ओके सो थर्ड वन और एक एग्जांपल यहाँ पर 3 वेरिएबल में बता रहा हूं. आप यहाँ पर वंस इस तरह भी फाइंड कर सकोगे इन केस. पहला वन है यहाँ पर ए बार और बी सी कॉलम में, ओके ए बार रो और बी बार सी बार कॉलम में, और दूसरा वन प्रेजेंट है ए बार रो में और बी सी बार कॉलम में, बी सी बार कॉलम में, राइट? तो उनकी वैल्यू भी लिखी मैंने जस्ट रीड भी कर लिया. ए बार बी बार सी बार पहले वंस के लिए और सेकंड वंस के लिए ए बार बी सी बार. राइट इट y is equal to a bar b bar c bar plus a bar b c bar, right? Now here b and b bar are again here common. Okay so that's why I take it b bar plus b, okay and a bar c bar is common. okay तो a b bar और b यहाँ पर अलग अलग था, मैंने कॉमन बोला पहले, राइट? अभी यहाँ सेंड में दीजिए ए बार और सी बार कॉमन है और बी बार इस एक्सप्रेशन में हमने सेपरेट निकाला. ओके नाउ बी बार प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, सो दैट्स व्हाई आई गॉट द फाइनल आंसर, दैट इज ए बार सी बार. गेटिंग एवरीवन विदाउट? ओके नाउ अगेन आई एम गोइंग फॉर 4x4. ओके इन केस अगर आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहा तो अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल की जगह 4 वेरिएबल है तो स्लैंटेड लाइन के ऊपर आपको दिया है बॉटम और अप साइड में ए बी और सी डी. तो यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स है. सो बिकॉज ऑफ दैट 4 वेरिएबल्स आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल की एक्सप्रेशंस मिलेगी, टर्म्स मिलेगी. ओके तो दोनों वंस यहाँ पर देखिए. ओके तो पहला वंस यहाँ पर है ओके ए बार बी रो में और पहला कॉलम है सी बार डी बार में, तो उसकी एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ए बार बी सी बार डी, राइट? और सेकंड वन से जो राइट हैंड साइड में है वह है सेकंड रो में, उसका रो का वैल्यू है ए बार बी और कॉलम की वैल्यू है सी डी बार. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सबको समझ में आ रहा है? ओके क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको रो और कॉलम के ऊपर ध्यान देना है. वन कहाँ पर है, रो का वैल्यू लो. ओके यहाँ पर मैंने रो का वैल्यू लिया है ए बार बी और कॉलम की वैल्यू लिया है सी डी बार. ओके और वही एक्सप्रेशन में डाल दिया y इज इक्वल टू ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी बार. ओके तो यहां से मैंने ए बार बी डी बार कॉमन ले लिया और सी बार प्लस सी यहां ब्रैकेट में आ गया. ओके तो c bar plus c is 1, so that's why I get the final answer, that is a bar b d bar. Okay so from this one variable is eliminated, right? So this is about the 2 variable. Okay so that's why this is about the pair. So 2 adjacent ones in a K-map, you can use this technology. Okay and you will get elimination of one variable in SOP form. Okay now I am turning toward the next one. Okay, I am telling you about the chord variables. Okay, the chord
means a group of 4 adjacent ones on K map is shown as a chord. A chord eliminates 2 variables C, right? यहाँ पर आपको 4x4 का या 4 वेरिएबल का आपको के मैप यहाँ पर शो किया है. ए बी स्लैंटेड लाइन के नीचे है, सी डी स्लैंटेड लाइन के अबव है, तो इस वजह से यहाँ पर ये 4 वेरिएबल का के मैप है. और यहाँ पर वंस की पोजीशन आपको दी है. ओके, फिर से एक स्क्वायर वहां पर ड्रॉ किया है. जनरली यहाँ पर ड्रॉ किया करते हैं, तो स्क्वायर के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई दीज आर द 4 ones that I am going to group. Okay, these are the 4 ones that I am going to group. ओके, तो इसी तरह आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हो. और अभी ग्रुप का मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, तो ग्रुप का एक्सप्रेशन लिखते समय यहाँ पर हमें जो सिमिलर वेरिएबल है वही लिखने हैं, डिसिमिलर वेरिएबल नहीं लिखने हैं. अभी 4 का ग्रुप है, अभी तक 2 वेरिएबल में आपको सिंपल था, सभी का सभी उठा लेना था, लेकिन अभी यहाँ पर अभी 4 वेरिएबल है. तो 4 वेरिएबल है, इस वजह से यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बार बी सभी रो को, सभी वंस को, पूरे रो को या ऑल वंस को कॉमन है, लेकिन सभी वंस को यहाँ पर कॉलम की वैल्यू अलग अलग है. सो दैट्स वाई यहाँ कॉलम्स की जो जहाँ वैल्यू अलग अलग है, सो दैट्स वाई डिफरेंट वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड. याद रखिए मेरा सेंटेंस, डिफरेंट वैल्यूज आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग द mean term expression. So that's why here only the similar values are taken in consideration. Just I am remember it, just I am repeating the sentence. Okay, यहाँ पर जो 1 1 1 1 है वह रो फैशन में है, तो रो फैशन में है, तो यहाँ पर वह ए बार बी सभी को कॉमन है, लेकिन कॉलम वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है. इस वजह से मैंने y की एक्सप्रेशन लिखी है, y इज इक्वल टू ए बार बी. ओके, कोई डाउट भाई किसी को? ओके, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी कि भाई नहीं सर आई एम नॉट गेटिंग, नहीं सर आई एम नॉट गेटिंग, तो भी मैंने यहाँ पर लेंथी आंसर लिखा है, तो मैंने शॉर्टकट में बताया y इज इक्वल टू ए बार बी. ओके, तो ये फास्टेस्ट वे हो गया. लेकिन अगर आपको लॉन्ग रूट से जाना है, डोंट बॉदर अबाउट इट, मैं लॉन्ग रूट से नीचे आंसर भी लिख के रखा है. पहले वंस के लिए लिखिए एक्सप्रेशन ए बार बी सी बार डी बार. ओके, y इज इक्वल टू लिखा है ए बार बी सी बार डी बार. दूसरे वंस के लिखिए, दूसरे वंस के लिए लिखा है ए बार बी सी बार डी. राइट, आ रहे हैं सबको, समझ में आ रहा है? थर्ड वन के लिए लिखा है ए बार बी सी डी. ओके, ए बार बी सी डी. और फोर्थ वंस के लिए लिखा है ए बार बी सी डी बार. राइट, तो इस तरह अगर आप यहां लिखोगे, तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ कॉमन वैल्यू निकालोगे, तो देखिए कॉमन वैल्यू निकाल के देखिए, आपको देखिए सेकंड इज इक्वल टू में मैंने लिख के दिया है. पहले 2 टर्म्स में देखिए ए बार बी सी बार कॉमन निकाला और डी प्लस डी बार यहाँ पर सेपरेट निकाला. ओके, नाउ सेकंड टर्म में यानी थर्ड और फोर्थ टर्म में देखिए ए बार बी सी कॉमन निकाला है, डी प्लस डी बार ब्रैकेट में है. ओके, नाउ d plus d bar is 1, so that's why d plus d bar is 1, so I kept it, I put it that value, so I will get final answer, that is a bar b c bar plus a bar b c. ओके, फाइनली अभी यहाँ पर 3 वेरिएबल की टर्म बच गई. अब यहाँ पर और c प्लस सी बार यहाँ पर मैं यहाँ ब्रैकेट में ले सकता हूँ और a बार b यहाँ कॉमन ले सकता हूँ. तो मैंने a बार b कॉमन लिया और ब्रैकेट में लिखा c बार प्लस c, तो c बार प्लस c इज 1. आई गॉट द फाइनल आंसर, दैट इज y इज इक्वल टू a बार b. तो आपने अगर एक्सप्रेशन लिखा तो आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, बुलियन अलजेब्रा का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके वहां पर एक एक रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन के बाद फाइनल आंसर मिला है ए बार बी.
लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशनल रूल अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ फाइनली आंसर इमीडिएट मिल जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर कहा था y इज इक्वल टू ए बार बी। यहाँ आपको अगर कॉमन यहाँ जो टर्म है वो अगर ले लिया तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, आपको वहां पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। देखिए अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वंस से अभी मैं यहाँ पर वर्टिकल वंस दे रहा हूं। आई होप यू विल गेट द फाइनल आंसर वेरी इजीली। यहाँ जो सेकंड के मैप है, इस सेकंड के मैप में आपको यहाँ पर फिर से 4x4 या 4 वेरिएबल का के मैप दिया है। ओके, ए बी और सी डी है। जो वर्टिकल कॉलम है उसका वैल्यू है सी डी, लेकिन रो का वैल्यू है डिफरेंट एवरी टाइम्स। ओके, सो दैट्स वाई आपको वहां पर डायरेक्ट फाइनल आंसर एक्सप्रेशन लिख के दिया y इज इक्वल टू सी डी, दैट इज योर फाइनल आंसर। But in case you need to solve it, don't bother about it. Again, write each and every term one by one. A bar, B bar, C D, A bar, B, C D, plus A, B, C D, plus A bar, A, B bar, C D. ओके, चारों एक्सप्रेशन लिख लिए 4 वंस के लिए। अप्लाई करो रूल्स अप्लाई करोगे तो यहाँ एक एक टर्म से यहाँ पर निकलती जाएगी और फाइनली आपको आंसर मिलेगा सी डी। ओके, सो यू चूज एनी वन, नो प्रॉब्लम। आइदर आपने यहाँ पर सॉल्व किया तो भी चलेगा, सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव गिवन यू बोथ द टेक्निक्स। ओके, आपके सामने है सभी। ओके, कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, वेरी फ्रीली। अभी वंस यहां पर इस तरह भी ले सकते हैं। अगर आपने यहां पर वंस अप साइड और बॉटम साइड में लिए तो भी चलेगा, वो इधर वाले या वो साइड वाले सेल्स में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली आपको यहां पर लेना है। ओके, तो इस तरह भी आपने यहां पर सेल चूज किया, वंस के लिए ग्रुप किया, तो इस तरह की ग्रुपिंग भी वैलिड है, तो इस तरह की ग्रुपिंग भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां फिर से एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, मैंने y इज इक्वल टू बी बार सी। ओके, और इस तरह आपको यहाँ फाइनली आंसर भी मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया है बी बार सी। ओके, अगर आपके पास रफ नोटबुक है आप यहाँ पर उसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। गेटिंग एवरीवन? नाउ और एक एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरह भी रह सकता है। ओके, ये वे भी है। ओके, और एक वे है, इस तरह भी रहेगा। ओके, यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओके मैं पहले इसमें बताता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ रो के वैल्यू देखिए, पहले रो में है ए बी, पहले थर्ड रो की वैल्यू है ए बी और फोर्थ रो की वैल्यू है ए बी बार, राइट। तो इनमें से यहां पर कॉमन कौन है, ए है या बी बी बार है? A is common, so that's why from third and fourth I get one value, that is A, right? सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने क्या किया, थर्ड रो का वैल्यू है ए बी, फोर्थ रो का वैल्यू है ए बी बार। ए बी प्लस ए बी बार लिखोगे तो भी आपको सेम मिलने वाला है। मैंने डायरेक्ट यहां पर कॉमन ले लिया, कॉमन ए है, बी बी बार स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये रूल है ना, बी प्लस बी बार इज 1। ओके, सो दैट्स व्हाई ए मुझे फाइनल आंसर मिला थर्ड और फोर्थ रो से। सिमिलरली फर्स्ट और फोर्थ कॉलम से देखिए, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम के वैल्यू है सी बार डी बार और फोर्थ कॉलम के वैल्यू है सी डी बार, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में और फोर्थ कॉलम के वैल्यू में डिफरेंस देखिए, कौन सा डिफरेंस है? डी बार इज कॉमन,
C C bar is not common. So C plus C bar is 1. D bar plus D bar is D bar, right? So that's why finally you will get column value is D bar. So what will be the final answer that I return? Y is equal to A D bar. Okay, got it everyone? जिसको नहीं समझा डोंट बॉदर अबाउट इट, चारों वंस की वैल्यू लिखो, सॉल्व करो, कोई डाउट नहीं, आपका फाइनल आंसर ए डी बार ही मिलने वाला है। ओके, सेम कैटेगरी सेम आप यहां पर इस तरह लॉ भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, या अभी यहां पर फोर्थ जो फाइनल आपको यहां पर और एक एग्जांपल दिया है, ऑल कॉर्नर्स पे 1 है, नो प्रॉब्लम, ऑल कॉर्नर्स पे 1 है तो ऑल कॉर्नर्स के 1s ले लो, इनमें यहां पर एक्सप्रेशन लिखो और सॉल्व करो, कोई डाउट नहीं। या फिर आपको सेंटर में आएगा 1s, सेंटर में 1s आएगा तो भी आंसर वेरी इजी। आई होप नाउ यू आर गेटिंग आइडिया हाउ टू सॉल्व इट। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओनली जस्ट बाय ऑब्जर्वेशनल व्यू यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, गेटिंग एवरीवन? ये फाइनल देख रहे हो, फाइनल जो के मैप आपको दिखाया है सेंटर में 1 से, ओके, वहां पर भी देखिए रो में है ए बार बी और थर्ड रो में है ए बी, सेकंड रो में है ए बार बी, थर्ड रो में है ए बी, बी कॉमन आएगा, ए बार कट जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम की वैल्यू है सी बार डी, थर्ड कॉलम की वैल्यू है सी डी, सी बार निकल जाएगा, रेस्ट विल बी डी, so that's why B and D will be there, so that's why Y is equal to BD is written, right? हाँ, अभी इस तरह यहां पर ये आप क्वाड के लिए जा सकते थे, आप यहां पर 4 एडजेसेंट वंस का ग्रुप कर सकते हो। ओके, लेकिन ये मिनिमल, ओके, ये जो है ये आपके सामने यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस दी हैं, हॉरिजॉन्टल वंस, वर्टिकल वंस, ओके, साइड वंस, ओके, डाउन वंस या अप वंस कहीं पे भी रहे, ओके, या फिर इस तरह के वंस, कॉर्नर वंस या सेंटर वंस। ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट, आपके लिए यहाँ पर इस तरह के रूल सारे सामने मैंने बताए, यूज एनीवन। ओके, बट मैं आगे और बताने वाला हूं कि कौन सा नहीं ले सकोगे, राइट? ठीक है, अभी यहां पर क्वाड से मैं ऑक्टेट में एंट्री कर रहा हूं। ऑक्टेट यानी एन ऑक्टेट इज ग्रुप ऑफ 8 एडजेसेंट वंस, इट लीड्स टू एलिमिनेट द 3 वेरिएबल्स। ओके, आप यहाँ ऑक्टेट से 3 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन कर सकते हो। सी इन फ्रंट ऑफ यू आई गिवन यू वन एग्जांपल, राइट? सी 8 ones are given, 8 ones are given, okay, so 8 ones are kept in a square, okay, so that's why all 8 ones are kept in a square, right? Now second row and third row, concentrate on second and third row value. Second and third row will says a bar b plus ab, okay, a and a bar are different, b is common, so that's why I taken it b, right? So that's why B is answer, because in column value every value is different. Okay, so that's why that Y is equal to directly B. In case if anyone is not satisfied with this, okay, you can write each one's expression. Okay, सभी के ones की expression लिखो, उसको बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करो लॉ, और आपको यहाँ पर फाइनल आंसर भी मैंने निकाल के दिया है, वो B ही मिलने वाला है। ओके, getting everyone? Now होमवर्क में दिया मैंने आपको, क्योंकि यू कैन सॉल्व इट, नाउ यू कैन सॉल्व इट, ये होमवर्क में लीजिए। ओके, ये भी होमवर्क में लीजिए, आंसर भी देके रखा है।
आपके सामने आंसर ही है, 2 सेकंड में आप जज कर सकते हो कि आंसर कैसा है। थर्ड एग्जाम्पल भी होमवर्क में दिया है, बिकॉज यू कैन जज वेरी इजीली। आई हैव गिवन अ स्मार्ट टेक्निक, just by observation you can write the expressions, no problem. In case if you feel doubt, don't bother about it, write in my WhatsApp, I will give you all the remedy, don't worry. Now last, I am giving a summary of rules for KMAP. Just I am telling you one by one. First rule is a KMAP may have more than one pair, quad or octet. ओके ऐसा मत समझो कि एक ही रहेगा, मल्टीपल रह सकते हैं। ओके सो दैट्स व्हाई अ K-map may have more than one pair, quad and octet. The ones left without group must be encircled, right? Keep it in mind. The ones left without groups must be encircled. I tell you what to do with that encircle. ओके लेकिन रूल याद रखो, अभी आगे उसका जरूरत रहेगा, भूलने का नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाई वंस लेफ्ट विदाउट ग्रुप्स मस्ट बी एनसर्कल्ड. थर्ड, while grouping it may be remembered that overlapping of group is allowed. Okay, remember, while grouping it may be remembered that overlapping of group is allowed, that is two or more group can have one or more ones in column, right? Redundancy is not allowed. Redundancy is not allowed, that is grouping whose all ones are overlapped by other group. Okay, यानी पूरा का पूरा ग्रुप फिर से दोहराओ मत. Okay, group whose all ones are overlapped by other groups. Okay, for simplifying SOP equations, groups should include only cell containing ones, and for POS equations groups should contain only zeros. Just remember the sentence. Fifth rule is important for SOP and POS point of view. For SOP all ones and POS all zeros. Grouping can be horizontal or vertical but not diagonal. Just remember this rule. Okay, means you can group it in horizontal fashion or in vertical fashion but not in diagonal, right? Group should be as large as possible. Don't make small group. 2 का ही ग्रुप मत बनाओ. अगर 4 का हो रहा है तो वहां 2 का मत बनाओ, 4 का बनाओ. ओके, अगर 4 की जगह 8 का बन सकता है तो 8 का बनाओ, चलेगा. Groups cannot be wrapped around a table. Sorry, group can be wrapped around a table. ओके, ग्रुप को wrapping चलेगा, आप उसको wrapping around a table कर सकते हो. ओके, अभी क्या नहीं करना है ये बात यहाँ पर शो कर रहा हूं. ओके, आपके सामने है. जो रिडंडेंसी है वो एग्जांपल दे के रखा है मैंने. ओके, तो आपके द्वारा यहाँ पर देखिए, ये देखिए, पहला आपने यहाँ पर ये ग्रुप किया, उसके बाद आपने सेकंड ग्रुप किया. ओके, उसके बाद में आपने थर्ड ग्रुपिंग किया. तो थर्ड ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है. जो थर्ड ग्रुप है सेकंड और थर्ड रो में, उसकी जरूरत नहीं है. ओके, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड रो में कर लिया, सेकंड और थर्ड कॉलम में कर लिया, वो ओके. लेकिन थर्ड सेकंड और थर्ड रो का ये जो है यहाँ पर ग्रुप नहीं चलेगा. ओके, तो इस तरह का ओवरलैपिंग मत करना. ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में अदर एग्जांपल दिया है. पहला ग्रुपिंग यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में चल जाएगा. देन फर्स्ट रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में चलेगा. लेकिन यहाँ पर जो सेकंड रो, ओके, और सेकंड और थर्ड कॉलम में जो यहाँ पर ग्रुप किया है वो नहीं चलेगा. ओके, वो मत करो. ओके, वो नहीं करना. अगर आप वो कर लेते हो, डोंट बॉदर अबाउट. अगर वो कर लेते हो तो अर्लियर मत करना.
ओके, सो दैट्स वाई ये रिडंडेंट ग्रुप हो गया, राइट? सो इस वजह से इस तरह के ग्रुप आप मत करो। ओके, सो दिस इज अबाउट द summary of rules for K-map simplification. I hope everyone is getting this. Okay, ये वीडियो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, ये वीडियो एक बार नहीं, दो बार देखो, दो बार नहीं, थर्ड टाइम देखो, लेकिन ये वीडियो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऑल रूल्स आई नीड। ओके, सो दैट्स वाई नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर नए प्रॉब्लम के साथ आ रहा हूँ। सो दैट्स वाई जस्ट स्टे watching. Okay, and just try to like the channel as well as subscribe the channel. Okay, as well as give your attendance in the comment box, as well as you can give me any comments if you want. Okay, no problem. Thank you very much.